minister was trying to pressurize me in respect of excise policy. I was the Excise and Taxation Commissioner. And he wanted certain things to be introduced in the policy which were not in the interest of government revenue. 6 months before retirement, they used to deposit their salary back into the government exchequer. उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। हर मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका होता है कार्य करने का। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो शाम के वक्त अगर कार्य कराना हो उनसे तो शाम के वक्त जाके मिलिए, उस समय उनका मूड बहुत अच्छा रहता है। Welcome to the first episode of the Vision IS podcast. In this series, we will be inviting eminent personalities from different walks of life to share their insightful experiences. Today, we have Shri Krishna Mohan sir, who is a retired IS officer, as our first guest. So thank you for coming here and giving your time, and we'll be having a very good conversation, not just for civil services aspirants, but also for all the people who out there want to know about you, want to know about your experiences in the field of civil services. Thank you for coming here, sir. Thank you, Abhimanyu. It's a great pleasure to be here. So before anything, first I would like to know, how does it feel to be an IS officer? Because the youth is, very fascinated with this entire concept of becoming an IS officer. So what is the role beyond those fancy bungalows, the societal status and the power that comes along? So Abhimanyu, the system of governance in this country has undergone a great change from the pre-independence era to the post-independence era. In the pre-independence era, the system of governance was called as colonial system of governance, whereas after independence, it's called as citizen-centric system of governance. So citizen is the focal point. The civil servant is expected to cater to the needs of the citizens of this country. All the policies, programs which are made by the central government and the state government, basically they are meant for the citizen. And therefore, these policies which are framed, they are implemented by the civil servants. So civil servants, no doubt, has got authority, has got power, has got status. But more than that, it is the policies which the civil servant needs to implement for improving the lives of the citizens of this country. So that is the job of a civil servant. And when we talk about civil service, then I like to specifically point out to a few uniqueness of civil service. So one uniqueness of the civil service is that it gives you opportunity to occupy leadership positions at a very young age. The second is it gives lot of diversity in terms of job. So as an IS officer, today you are looking after agriculture. Tomorrow it can be forest, it can be transport, it can be social welfare. In fact, if there are 26 letters in the English alphabet, every letter represents some department or the other. So A for agriculture, you will have S for social welfare, T for transport, E for environment. So during 35 years of service, an IS officer is able to traverse the journey of at least 20 departments. So it gives lot of diversity. The third thing which Indian administrative service और सिविल सर्विस गिव्स इज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. कुछ नया करने का मौका मिलता है जो कि शायद उतना ज़्यादा दूसरी सर्विसेज में नहीं मिल पाता है. तो आप किसी सिटी की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव कर दें, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव कर दीजिए. आपको याद होगा कि एक IAS ऑफिसर था जिन्होंने 100 किलोमीटर की रोड भी बना दी, मिस्टर पामे. तो कुछ न कुछ नया करने को मौका मिलता है. तो तीसरा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्विस की खूबी है वो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन. और चौथा, द सिविल सर्विस कैन चेंज द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, द पुअरेस्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट की, एंड एक्चुअली आई फील कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि एक रोल ये होता है IAS ऑफिसर का. क्योंकि आजकल जिनको मैं जानता हूँ, जो एस्पिरेंट्स मेरे सर्कल में रहे हैं या इवन एट लार्ज इफ़ यू गो आउट एंड सी, तो उनकी जो डिमांड है इस जॉब को लेके वो बहुत डिफरेंट साउंड करती है. उन्हें फैंसी बंगलोज दिखते हैं, उन्हें कार के ऊपर लाल बत्ती दिखती है, उनको नौकर चाकर ये सब आसपास दिखता है. उन्हें बेसिकली जो एडिशनल चीज़ें हैं, जो सबसेट है IAS होने का, वो सब बहुत अट्रैक्ट करता है, रैदर देन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि एक IAS का रोल क्या है.
इसी वजह से फिर कुछ लोग उस विशेष सर्कल में फंस जाते हैं कि आईएएस बनने आए हैं बट एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि उनका जो एक्चुअल में थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं है कि आईएएस बनना क्यों है, आईएएस काम करता क्या है। वो सिर्फ जो आसपास दिखता है, सोशल मीडिया पे दिखता है, उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। इससे सर मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आपको लगता है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कि सोशल मीडिया पे आईएएस ऑफिसर्स अपनी जो लाइफ दिखाना चाह रहे हैं कि आई नो ऑफ यू नेम्स ऑल्सो बट लेट्स नॉट टेक द नेम्स हियर, बट देव बीन शोइंग देयर लाइव्स इन अ फैंसी वे कि जो भी वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अ फ्यू आईपीएस ऑफिसर्स आर गोइंग आउट देयर रिकॉर्डिंग अपनी रेड्स को, पीछे बीजीएम म्यूजिक लगा देते हैं जैसे कि वो सिंघम मूवी चल रही है कोई। तो सर आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है और आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेकर? सो अभिमन्यु, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आईएएस को या सिविल सर्विस को इन जनरल जॉब समझते हैं। एक्चुअली ये जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है और इसीलिए हमको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। एन आईएएस ऑफिसर इज़ ए पब्लिक सर्वेंट और डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट शायद लोगों को सबको नहीं मालूम। पब्लिक सर्वेंट इज़ वन हु गेट्स सैलरी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर एंड पब्लिक एक्सचेकर gets its money from the taxes which are paid by the public, and therefore a public servant or civil servant is responsible to the public, and since he is a public servant it is his job to serve the public. Coming to the glorification which now people are hitting the social media, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, इसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पहले स्कोप बहुत लिमिटेड होता था जब हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जाते थे, अब गांव-गांव तक, शहर-शहर तक लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही आसानी से सरकार की स्कीम्स और प्रोग्राम्स को फैलाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया का उपयोग या मीडिया का उपयोग सिविल सर्वेंट को सरकार की स्कीम्स और प्रोग्राम्स को फैलाने या उनका प्रभाव बताने के लिए, लोगों को उसकी उन सहूलतों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुद के ग्लोरिफिकेशन को नहीं किया जाना चाहिए। मेरा ये मत है कि सिविल सर्वेंट मस्ट बी ए फेसलेस पर्सन लाइक एन आर्मी। आर्मी इज फेसलेस, सिविल सर्वेंट ऑल्सो हैज़ टू बी फेसलेस। सिविल सर्वेंट हैज़ टू stand behind the political executive because civil servant is the permanent executive and political executive has to go back to the constituency to nurse the constituency. हर 5 साल के बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को तो जाना आवश्यक है। तो इसीलिए ग्लोरिफिकेशन अगर किसी को चाहिए तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चाहिए, क्योंकि उनको 5 साल के बाद दोबारा जाना है। सिविल सर्वेंट 35 साल के लिए आता है, वो परमानेंट है। उसका ये काम नहीं है कि वो जो है सोशल मीडिया पर जाकर अपना ग्लोरिफिकेशन करे। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है जिसके द्वारा सिविल सर्वेंट सरकार के प्रोग्राम्स और स्कीम्स को, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, इनके बारे में जब बताना है तो सिविल सर्वेंट को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए कि साथ में फोटोग्राफर को रख लिया और उसको पीछे पीछे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ रेड कंडक्ट करने वहाँ पर जो है वो फ़ोटो ले रहा है। मेरा ये मानना है कि ये फेसलेस का जो हमारा सिविल सर्विस का जो होना चाहिए, ये उसके विपरीत जाता है। सर बॉलीवुड मूवीज़ में और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक और चीज़ है जो बहुत हाईलाइट होती है, द लव एंड हेट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो ये चीज़ एक्चुअली ऑन ग्राउंड होती है क्या? आपने कभी फेस करी है? हैज़ देयर बीन लाइक एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और यू नो काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन योर वर्क? सो अभिमन्यु, बॉलीवुड या सिनेमा कह लीजिए जनरल, इसका समाज के ऊपर हमेशा इसका असर तो होता ही है। और कई बार क्या होता है कि उसमें जो ग्लैमरस चीज़ें हैं लोग उसको ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि रियलिटी में जाकर अंदर देखें कि वास्तव में क्या है, सिविल सर्वेंट की लाइफ कैसी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम कोई एस्पिरेंट बन जाता है अल्टीमेटली सिविल सर्वेंट, तो उसको ये देखना चाहिए कि उसका अल्टीमेटली जॉब क्या है। क्या उसका जॉब जो है सेवा है या सिर्फ जॉब ही है। तो बॉलीवुड का असर तो देखिए हर एस्पेक्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन क्या चीज़ उसमें से निकाल के सही लगे उसको लेना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, इसके बीच में विश्लेषण करना जो है बहुत आवश्यक है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ग्लैमरस होती हैं, बट देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि सिविल सर्विस के साथ काफ़ी कुछ पावर, अथॉरिटी और स्टेटस सिंबल अटैच हो जाता है।
और लोग समझते हैं कि इसके बाद जो है सबसे पहले हमको गाड़ी मिलेगी और मकान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें छोड़कर सिविल सर्वेंट को सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि स्टेक होल्डर, जो कि उसका मुख्य स्टेक होल्डर है, उसकी सेवा अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो हो गया सिविल सर्विस का, बॉलीवुड का असर। जहाँ तक सवाल उठता है पॉलिटिशियंस का, देखिए, राजनीतिज्ञ और सिविल सर्वेंट दोनों का अपना एक महत्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वन इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, द अदर इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सरदार पटेल ने जब कंसीव करी इंडियन सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस का जब उन्होंने आवश्यक समझा, उसके दो कारण बताए। और दो कारण ये थे कि उन्होंने कहा कि पहला तो सिविल सर्वेंट के पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, और जो आदमी चुन कर आता है हो सकता है उसके पास ये तीनों चीज़ें ना हो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो सिविल सर्वेंट उसको गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। तो पहला तो ये है संबंध। दूसरा संबंध ये था कि जब एक सरकार बदलती है और दूसरी सरकार आती है, उन दोनों के बीच में एक सेतु का कार्य करता है सिविल सर्वेंट, एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। क्योंकि लाइफ गोज ऑन, इलेक्शंस होते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट वहीं रहते हैं। तो उनका काम है कि जो पब्लिक सर्विस है वो समय पर लोगों को मुहैया कराई जा सके, उपलब्ध कराई जा सके। जहाँ तक आता है कि दोनों का अपना महत्व किस हद तक जो है वो होना चाहिए, देखिए, दोनों जो है, जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मेन उनका काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, और उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम है सिविल सर्वेंट का। ये कहना भी गलत है कि पॉलिटिशियंस जो है उनका जो है वो हमेशा गलत बात करते हैं या प्रेशराइज करते हैं। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिशियंस आर वेरी लार्ज हार्टेड पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। समाज में अगर डिजेनरेशन हुआ है तो सभी जगह हुआ है, चाहे वो सिविल सर्विस में हुआ हो, चाहे पॉलिटिशियन में हुआ हो, चाहे किसी में हुआ हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिविल सर्वेंट को पॉलिटिशियन को समझना ज़रूरी है और पॉलिटिशियन को सिविल सर्वेंट को समझना ज़रूरी है। को दोनों को मिलकर ही कार्य करना है, और अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तभी जो है अल्टीमेट स्टेक होल्डर सिटीजन का भला होगा। अगर एक दूसरे के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं होगा, पॉलिटिशियन मिसट्रस्ट की भावना से देखेगा सिविल सर्वेंट को, तो भी काम नहीं चलेगा। और सिविल सर्वेंट भी ये सोच के चलेगा कि पॉलिटिशियन जो कुछ कह रहा है वो गलत है, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन, दे आर अटैच टू द मासेस, they go back to their constituency, they are aware about the problems, and civil servant has to assist the politician अगर कोई चीज़ कुछ कहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलती हो। तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिशियंस आर वेरी लार्ज हार्टेड पीपल, और कभी अगर आप उनको जाके समझाएं तो उनको बात समझ में आती है। सर, आपका कोई पर्सनल ऐसा बिटर एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिशियंस के साथ? मेरा बिटर एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, जैसा आपने कहा ना कि लव हेट रिलेशनशिप होती है, तो पॉलिटिशियंस के साथ कार्य करने में एक अपना मज़ा है, क्योंकि दोनों की एक दूसरे को आवश्यकता है। अकेला ब्यूरोक्रेट भी जो है वो पूरक उस संपूर्ण नहीं है, उसको पॉलिटिशियन की भी आवश्यकता होती है। और पॉलिटिशियन को, जैसे मैंने कहा, आवश्यकता है क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज और स्किल्स जो है वो ब्यूरोक्रेट के पास होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं एक दो एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मैं करनाल में कलेक्टर था, तो जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि डीसी साहब, एक धार्मिक समुदाय को एक ज़मीन की आवश्यकता है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, और लोकल एमएलए जो है उन्होंने मेरे ऊपर आके मुझे कहा है, तो आप ये ज़मीन को जो है अलॉट कर दीजिए। अब देखिए, जब ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन से बात करता है तो उसको बहुत समझ के बात करनी होती है। अब मैंने उस समय ये नहीं कहा कि जी सर ये नहीं हो सकता, यद्यपि मुझे मालूम था कि वो ज़मीन अलॉट करने में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि सर इसको देख लेते हैं, जो भी संभव होगा हम लोग उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात मैंने अपने एसएसपी से बात करी, मैंने कहा कि ये ज़मीन अलॉट करवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि देखिए, साथ वाली ज़मीन जो है एक दूसरे धार्मिक समुदाय की है, और अगर ये ज़मीन हमने अलॉट कर दी तो ये एक परमानेंटली उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा रहेगा। जब भी कभी कोई त्यौहार होगा किसी एक समुदाय का, तो दूसरे वाले उसके ऊपर जो है तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे। तो अगर ये बच सके, अवॉइड हो सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा भी यही मानना था।
लेकिन मुझे जाके मुख्यमंत्री को बताना आवश्यक था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के स्टाफ से बात करी, मैंने कहा कि दिल्ली आना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो अगले दिन का उन्होंने टाइम दे दिया। अगले दिन मैं और एसएसपी दोनों गाड़ी में बैठकर, उसी गाड़ी में बैठकर गए, और सुबह जो मुख्यमंत्री थे उनको सुबह-सुबह उनका जो मूड था बहुत अच्छा रहता था। हर मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका होता है कार्य करने का। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो शाम के वक़्त अगर कार्य कराना हो उनसे, तो शाम के वक़्त जाके मिलिए, उस समय उनका मूड बहुत अच्छा रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सुबह बहुत अच्छा मूड रहता था। तो ये मुख्यमंत्री जो थे, ये सुबह-सुबह उठ के जब नहाते थे, और नहाने के बाद जो है धोती कुर्ता पहन के बड़े अच्छे मूड में कलेवा करते थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के स्टाफ से टाइम लिया, हम दोनों वहाँ पहुँच गए, सुबह 6 बजे पहुँचे। तो मुख्यमंत्री जी नहा धोकर बैठे हुए थे, कहेंगे, "अरे! आप दोनों एक साथ आए, क्या हो गया? सब ठीक-ठाक तो है ना?" मैंने कहा, "सर, सब ठीक-ठाक है, आपसे कुछ वार्तालाप करना था।" "हाँ, बताओ।" मैंने कहा, "सर, वो आपने 3 दिन पहले जो कहा था ना कि वो ज़मीन अलॉट करनी है, तो सर ज़मीन अलॉट तो होने में कोई दिक्कत नहीं है, कैबिनेट से अप्रूवल हो जाएगी, ज़मीन अलॉट हो जाएगी। लेकिन उसमें एक आपके कान से एक बात निकालनी आवश्यक है। वो ये जो ज़मीन आप अलॉट कराना चाहते हैं, इसके साथ में दूसरे धार्मिक समुदाय की ज़मीन है, और ये परमानेंट डिस्प्यूट बन जाएगा, और आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात का हमारे पर दोषारोपण करेगी कि आपने गलत जगह पर ज़मीन अलॉट कर दी, परमानेंट डिस्प्यूट हो गया। तो अगर आप उचित समझे, तो हम कुछ और प्रस्ताव करें। कहने लगे, भाई इसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है लोकल एमएलए का, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, सर, एक और ज़मीन मैंने आइडेंटिफ़ाई करी जो वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, पंचायत की ज़मीन है, उसको पैसा भी मिल जाएगा और ये डिस्प्यूट भी नहीं रहेगा। साथ में मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड लेकर गया था, उनके सामने फैला दिया, उन्होंने देखा, कहने लगे, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, उस एमएलए को मैं समझा दूँगा। तुम लोग जाओ, इस ज़मीन को अलॉट करने की कार्य करो। अब ये एक तरीका था कि पॉलिटिशियन के को बजाय ये कहने के कि जी नहीं हो सकती, तो उस आदमी पॉलिटिशियन को बुरा भी लग सकता था। बजाय उसके कि मैंने उसको अपने ढंग से समझाया, और मैंने ये पाया कि वो ही वाज़ सो फेवरेबल, ही वाज़ सो लिसनिंग टू योर प्रपोज़ल, he was paying due attention to it, and he readily agreed to that. So this is my view. Politicians are very large hearted people. We form this kind of opinion that politicians are unreasonable. It is not so. Another case happened where a minister was trying to pressurize me in respect of excise policy. I was the excise and taxation commissioner, and he wanted certain things to be introduced in the policy which were not in the interest of government revenue. तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि सर, ये मंत्री जी दबाव डाल रहे हैं, और मैं आपके सामने सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं रेवेन्यू में एनहांसमेंट 15% से ज़्यादा हो इस साल, और ये जो प्रपोजल कह रहे हैं इससे 8 या 9% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा। इनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनको सब पता था, मुख्यमंत्री को सब पता होता है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मंत्री जी को बता दीजिएगा कि आपकी बात मुझसे हो चुकी है, और जो आपने प्रपोज़ल दिया है वही लागू किया जाएगा। और मैंने जाके मंत्री जी को बताया, कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी जो एक्साइज़ पॉलिसी थी वो अप्रूव हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेट को समझना चाहिए, उसको भी फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ही शुड बी अनलॉफुल, लॉ के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर ही चलना पड़ेगा। लेकिन ये भी समझना होगा कि पॉलिटिशियन की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं, कुछ उनके भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। I distinctly remember a very interesting incident when I was working in the excise and taxation department on a very, very important post. My job was to collect revenue, sales tax, excise, passenger goods tax, and so on. And the political executive, the chief minister of the state, he wanted maximum revenue so that he could carry out developmental activities in the area. तो मैंने एक्साइज ऑक्शन में जो इंक्रीज़ नॉर्मली 9% आती थी, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने 25% की इंक्रीज़ एक्चुअली जाके अल्टीमेटली दी। तो मुख्यमंत्री काफ़ी मुझसे प्रसन्न थे कि क्योंकि ऐसी रेवेन्यू कभी भी इंक्रीज़ पहले नहीं दी गई थी। और उसके एक्साइज़ के जो ऑक्शन होने के बाद जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया था, मैंने उनका तबादला कर दिया। उनमें से कुछ लोग जो थे वो मेरे मंत्री के करीब थे। तो मंत्री महोदय मेरे से बड़े नाराज़ हुए, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने कैसे तबादला कर दिया, ये पावर तो मेरे पास है। तो मैंने उनको बड़े अदब के साथ बताया कि ठीक है, ट्रांसफ़र की पावर आपके पास ज़रूर है, लेकिन मेरे पास 4 महीने के लिए उनका हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की पावर है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया है,
और मैंने किसी बायस के ऊपर नहीं किया, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया है मैंने उनका किया है। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन कॉल किया और मैंने उसका जवाब दे दिया और मैं वो जवाब चल के मेरे सेक्रेटरी के पास गए और मेरा नाम कृष्ण मोहन है और मेरे सेक्रेटरी का नाम था विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जी के पास मैं गया और मैंने कहा कि सर ये आपके पास रिप्लाई मैंने भेजा है, तो आपने आगे इसको बढ़ाना है, मंत्री महोदय ने मेरा पूछा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपने जो लिखना हो लिख दीजिएगा। मैंने तो जो कुछ किया है गुड फेथ में किया है। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि हाँ, ये बात मैं भी करता था अपने समय में, वो भी कभी उसी पोस्ट पर थे जिस पोस्ट पर मैं आज था। कहने लगे हाँ, मैंने भी कई बार किया था, कोई बात नहीं, आपको डिफेंड करेंगे। तो उन्होंने भी जो है मेरे फ़ेवर में लिखकर नोट मंत्री महोदय को भेज दिया। मंत्री महोदय और नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट तो मेरे खिलाफ़ लिख ही रहा था, अब सेक्रेटरी भी मेरे खिलाफ़ लिखने लगा। तो उन्होंने सीएम को शिकायत करी हम दोनों के खिलाफ़। तो मुख्यमंत्री जी बहुत ही उदार व्यक्ति थे और बहुत ही सपोर्टिव थे। सर उनका नाम बताना चाहेंगे? नाम रहने देते हैं। तो मुख्यमंत्री बहुत ही सपोर्टिव थे ब्यूरोक्रेट्स के और उन्होंने उनके पास जब फाइल पहुंची तो उनके जो सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय ने आप दोनों के खिलाफ जो है नोट लिखकर भेजा है। तो मैंने कहा कि आप देख लीजिए, जो भी हमने किया है वो नियमानुसार किया है और मेरी पावर थी तभी मैंने किया है। और मैंने उनको ये भी हँस के कहा, मैंने कहा सर आप भी इस पोस्ट पे पहले रह चुके हैं, आपने भी इस प्रकार के तबादले बहुत सारे किए थे और मैं उनकी कॉपी लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो वो देखा, उन्होंने हँसे, कहते हाँ मैंने भी किया था। तो मैंने कहा अब आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जिस मंत्री ने आपके खिलाफ लिखा है वो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं और 5 बार एमएलए रह चुके हैं, तो इसको पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइल पर सीएम साहब लिखना नहीं चाहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपको बुलाएँगे मीटिंग के लिए, पर्सनल हियरिंग के लिए। तो कुछ दिन 2 दिन 3 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि कृष्ण मोहन जी भी हाज़िर हों और विष्णु भगवान जी भी आएँ। हम दोनों उनसे मिलने गए। अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि क्या बात हुई? आपका मंत्री नाराज़ है आपसे? मैंने बता दिया, मैंने कहा कि सर आपको पता है एक्साइज़ ऑक्शन में 25% इंक्रीज़ दी थी, वो इनको पसंद नहीं आई थी और उसके बाद मैंने कुछ लोगों का तबादला कर दिया है। कहने लगे वो तो बात ठीक है, पर बड़ा वरिष्ठ मंत्री है, तो इसको हमें बड़ा स्पेशल तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो अब आप सुनिए, आप दोनों जने, कोई और नहीं था उस कमरे में। अब आप दोनों सुनिए, मैं कल जो है मंत्री महोदय को बुलाऊँगा और जब वो आ जाएँगे तो उसके बाद आप दोनों को भी बुलाऊँगा और उनके सामने आपको झूठ-मूठ का डाँटूँगा। आई विल रिब्यूक यू जस्ट लाइक दैट, झूठ-मूठ का। उसको बुरा मत मानना, करना वही जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन उनके सामने मुझको आपको झूठ-मूठ में डाँटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ताकि वो जो उनका जो अंदर का जो है वो गुस्सा वो शांत हो जाए और वो अपीज़ हो जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप अगर डाँट भी देंगे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोगों ने सही किया है। चलिए बिल्कुल, इसमें कोई शक है ही नहीं। अगले दिन हम लोग को निमंत्रण मिला। जब हम पहुँचे तो देखा मंत्री महोदय पहले ही बैठे हुए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरी ओर, क्या बात है भई? मंत्री जी आपसे बहुत नाराज़ हैं। सुना है कि उन्होंने आपको फ़ोन किया था और आपने फ़ोन जो है पूरी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन पटक दिया। मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसी बात हिम्मत क्यों कर सकता हूँ। मुझे लगा कि शायद इनकी बात पूरी हो गई, इसलिए मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने इनको समझा दिया था कि हमने जिनका तबादला किया है, किन वजह से किया है, टारगेट्स पूरे होने आवश्यक थे। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना है, जो नहीं कर रहे हैं उनका तबादला कर दिया। तो मुख्यमंत्री बोले कि नहीं, नहीं, आपको इनकी बात सुननी चाहिए थी और देखिए बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं। फिर मुड़ के बोले विष्णु भगवान जी से, अरे विष्णु भगवान जी, आप तो और सीनियर हैं, आपने भी नहीं सुनी मंत्री जी की, ये क्या बात है? गलत बात है, देखिए आप लोग को सुनना पड़ेगा मंत्री महोदय, आगे से जो भी बोलेंगे मंत्री महोदय को आप तवज्जो देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद कहा मंत्री जी अब आप चिंता न कीजिए, मैंने इन दोनों को आपके सामने डाँट दिया है, आगे से आपका जो है पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। तो मंत्री महोदय बड़े खुश हो गए और उठने लगे और उठते-उठते आखिरी बाण जो था मुख्यमंत्री जी ने मारा उन मंत्री जी को और कहा कि और मंत्री जी, ये क्या छोटे-मोटे कामों में आप लगे रहते हैं? ये टारगेट कंप्लीट करना, ये सब काम सेक्रेटरी और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का है।
और टारगेट्स इनको दिए जाते हैं, तो इनको तो पूरा करने के लिए कुछ छोटे-मोटे तबादले करने पड़ते हैं। तो आप जो है ये छोटे-मोटे कामों में मत पड़ा करो। अरे आपका काम है पॉलिसी बनाना, आपका काम है टूर करना, आपका काम है मीटिंग करना, आपका काम है विदेश जाना। अरे आप बताइए कौन से आप देश में जाना चाहते हैं, मैं आपका टूर अभी बनाता हूँ। ये सब क्या छोटे-मोटे काम में आप पड़ते रहते हैं। ये काम छोड़ दिया कीजिए, तबादले वगैरह ये इनका काम है। उसका बस एंड हुआ और उसके बाद हमें कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए उस मुख्यमंत्री ने हम दोनों के लिए आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने सपोर्ट करी। तो मैं यही कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस को हम बेवजह जो है हम दोष देते हैं, दोषारोपण देते हैं। पॉलिटिशियंस आर वेरी लार्ज हार्टेड पीपल और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनका कार्य होता है कि देश को में सुशासन चलाना और वो सुशासन चलाने के लिए अगर ऐसे अनएथिकल पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उनके ऊपर भी लगाम कस के वो रखते हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा है और मैंने इसीलिए मुझे जब मैं लुक बैक करता हूँ अपने करियर को, तो मुझे बड़ी संतुष्टि का अनुभव इसके अंदर होता है। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर समवन हैज स्पोकन इन अ गुड लाइट अबाउट पॉलिटिशियंस, कि कैसे वो इतने हेल्पफुल रहे हैं सीएम साहब और काम भी हो गया एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। बट सर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने जहाँ पे कि आईएएस ऑफिसर्स हैव कम आउट एंड स्पोकन, जैसे अशोक खेमका सर हैं, उनकी बहुत स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते रहते हैं, वो काफ़ी आके बात करते हैं इस बारे में दैट ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ बेटर एक्सपीरियंसेस, 55 टाइम्स ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। तो उसको लेके आपका क्या कहना है कि ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और क्या करा जा सकता है वहाँ पे फिर? तो अभिमन्यु अशोक खेमका हमारे हरियाणा काडर के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है। बहुत ही इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, हार्ड वर्किंग हैं, नॉलेजेबल हैं और उन्होंने जहाँ भी जिस भी विभाग में जाके उनकी नियुक्ति हुई, उन्होंने अपनी वहाँ पर अमिट छाप छोड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ ऑफ दैट ऑफिसर। जहाँ तक सवाल उठता है कि ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स का, इट इज़ अ प्रोफेशनल हैज़र्ड विच एवरी आईएएस ऑफिसर has to understand that when he joins the service, this professional hazard will always be there. It can be posting transfer many times during the service. So Ashok Khemka unfortunately had to suffer because of the transfers and posting, but that doesn't in any way take away this point that he's a brilliant officer. सर वो डर रहता है आईएएस ऑफिसर्स को, मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट उनके मन में रहता है कि यार ये पोस्टिंग मिल जाए या और आई शुड गेट अ फेवरेबल पोस्टिंग। सो इज दैट समथिंग दैट गोज ऑन इनसाइड अ ब्यूरोक्रेट्स माइंड कि इफ आई डू समथिंग इन फेवर ऑफ अ पॉलिटिशियन मे बी सो आई गेट अ फेवरेबल पोस्टिंग? सो इज इट समथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट इन द आईएएस लॉबी? सो अभिमन्यु हर आईएएस ऑफिसर्स का जो करियर होता है लगभग 35 साल का होता है, 35 से 37 साल का होता है और उस दौरान में इट इज़ अ साइन कर्व। अच्छी पोस्टिंग भी मिलती है, ऑर्डिनरी पोस्टिंग भी मिलती है, खराब पोस्टिंग भी मिलती है। तो हर एक को अपना शेयर तीनों का मिलता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट को इसके लिए अनावश्यक कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग उसको मिले, क्योंकि उसको अपना शेयर मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो मैंने देखा है कि अच्छा अधिकारी अगर है, तो उसकी ज़रूरत पॉलिटिशियन को भी होती है। जब कभी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पर अच्छा अधिकारी ही काम आता है। तो हाँ, ऐसे अधिकारी भी हैं, जो कि कई बार कोशिश करते हैं किसी पोस्टिंग का, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। ज़्यादातर लोग को विश्वास है कि जो सिस्टम इस समय है, उस सिस्टम के मुताबिक उनको अपना शेयर ज़रूर मिलेगा। और मैंने ऐसा देखा है कि कई अधिकारी जो कि शुरू में खराब पोस्टिंग्स मिली, बाद में उनको बहुत अच्छी पोस्टिंग्स मिली। तो आई थिंक वन शुड टेक इट इन स्ट्राइड दैट ड्यूरिंग 35 years ही विल डेफिनेटली गेट good postings, outstanding posting, mediocre postings, and that is a way of life. It is a sine curve. Life is not hunky dory. और मुझे याद है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जस्टिस ने कहा था कि ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करके, बहुत कुछ सब्र करके और काफ़ी कुछ नज़रअंदाज करके। तो ये जो सिविल सर्वेंट है उसको एक निष्पक्ष भाव से देखना पड़ता है अपने सर्विस को, और जिसको हम कहते हैं
स्थिति स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहते हैं कि उसको अच्छी भी सिचुएशंस उसके सामने आएंगी, खराब भी आएंगी, परंतु यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। Sir, as you know that IAS is a very powerful position, and from this I can recall a quote which says that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So what do you think, what is the role of ethics in the civil services administration? एथिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है सिविल सर्विस में, क्योंकि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि सिविल सर्विस में अथॉरिटी बहुत होती है और पावर होता है, तो उस पावर को और अथॉरिटी को बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि civil servants are the role models. Role models for the other people, role models for their subordinates, and therefore if they act in an unethical means, then it sends very wrong signals to the stakeholders, which is the one of the important stakeholder is the citizen of this country. So let me narrate to you one very interesting anecdote. All of us have heard that the private house, which is regarded as the most ethical private house in this country, is the Tata Group of Companies. तो JRD टाटा अपने ऑफिस में उन्होंने एक टेबल रखी थी और उस टेबल में 2 ड्रॉर्स थी। दोनों ड्रॉर्स में स्टेशनरी आइटम्स थे। स्टेशनरी आइटम्स का मतलब A4 शीट्स, इरेजर, स्टेपलर, sharpener and other things. But there was a difference. The left drawer contained stationery items which he had purchased from his own personal savings bank account, and the right drawer contained stationery items which he had purchased from the company's account. Never did he mix the two. If it was a personal work, he would take out the stationery from the left drawer, and if it was a company's work, he would take out from the right drawer. वो अपनी पत्नी को टेलीफोन एक पर्सनल टेलीफोन पर करते थे और हमेशा लंच टाइम में करते थे, कभी ऑफिस टाइम में नहीं किया. So ethical was he. And the legacy continued till Ratan Tata also, who recently passed away. Another incident which comes to my mind was Vishweshwarayya, again a Bharat Ratna, and Engineers Day is celebrated, by his, in his name. So Vishweshwarayya was the Diwan of Mysore, and when he went to submit his resignation, he went by official car. But after submitting resignation, he came back in his private car. He had 2 sets of candles. Those were the days when power was not enough. And the 2 sets of candles which he had purchased, one from his own money, one from the government. If it was a government file, he would use the candles which were purchased by the government. And when it was personal work, his own candles. Many ICS officers, something, a very interesting thing, many people do not know about it. 6 months before retirement, they used to deposit their salary back into the government exchequer. रिटायरमेंट से 6 महीना पहले अपनी सारी सैलरी जो है वापस सरकारी अकाउंट में जमा कर देते. किसी ने पूछा, व्हाई आर यू डूइंग इट? दे सेड, ड्यूरिंग आवर 35 years of service, knowingly, unknowingly, wittingly, unwittingly, we might have misused the government position, government infrastructure, government vehicle, government telephone, government stationery, and therefore we are depositing this 6 months salary as a sort of compensation for the unethical acts done by us. So therefore ethics plays a very important part, because whatever is done by the IAS officer, the same is emulated by the people down below. He is the role model. So when it comes to ethics, this question is often asked. Why should we be ethical? There are many people who are very unethical and they seem to be prospering. But to which I give 4 reasons why the civil servants need to be ethical. Number 1, once you have decided to join the civil service, do you really have a choice of being unethical? No, you have no choice, because you are bound by conduct rules. And if you break the conduct rules, you are bound to be the culprit, and disciplinary action will be taken against you. So therefore, once you have taken a decision of joining government service, you have to be ethical. And if you are unethical, you will pay a price sooner or later. It may not come today, it may come after 15 years, it may come after retirement also. I am not saying that ethical people don't pay a price. Ethical people also pay a price, but it is a very temporary setback. They spring back. हिंदी में कहावत है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता. एथिकल आदमी भी परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा.
लेकिन और अक्सर कहा जाता है it requires courage to be ethical. Actually, being ethical makes you courageous. Right. So that is what is if you are ethical, you will become very courageous because there is nothing to fear of. And the second reason which I always try to give being ethical is that if you are ethical, you have a very sound sleep. You are not afraid of any enforcement agency knocking at your door at midnight. Those who are unethical, they are afraid of these agencies. Absolutely right, sir. Sir, I also feel that जब तक आप एक position पे होते हो, when you are an IAS officer, so a lot of people respect you because of your position, because of that name that you have, that IAS. But the actual respect comes when you retire and when you leave that power and position. So if people still respect you, that is what you've earned for your entire life. And that brings me to the next question, that these days we see a trend where after retirement, civil servants and judges are joining politics. So how ethical is that? It is my belief that a human being can deliver and give to the society much more beyond the age of 60 years also. The productivity in any ways does not go down at the age of 60 years. So, the civil servant must do something. It can be in different spheres. If he decides to be a politician or join a private organization, as such, there is nothing wrong with that because ultimately your experience, your knowledge, your skills must be utilized somewhere. And if you give back to in terms of politics or in terms of private sector getting your services, there is nothing wrong with it. Only this one thing is there. It is my understanding and my feeling that once you have remained a part of the civil service for almost 35 to 37 years, a certain cooling off period must be there, so that you are then detached from the civil service and you join a particular organization on your own strength. Otherwise, what happens is that people attribute motives. And I think civil servants should rise above all these things. One should decide to join. In fact, as I said, one should be professional, and there is nothing wrong. Good people must join politics also. And a civil servant, because of the skills and competencies, experience, there is nothing wrong in joining a private sector or a politics. But I think he or she should give a small gap before joining any organization. It may be 2 years, it can be 3 years, a policy decision, after which, so that the continuity from the service is broken. Otherwise, people start believing that the person, the officer, was in the last years before retirement was working towards getting something from the private sector or otherwise. Compromise. His ethics. Sir, you've served in the Haryana cadre. So what is that one thing that you really love about Haryana? First, I would want to know that. Haryana is an excellent cadre. I'm not saying that other cadres are not good, they are all equally good, but Haryana has got the importance of having an excellent infrastructure, very developed state, very good agriculture base, very good people who are very hardworking, and they have really done wonders after getting a partition from Punjab. This area used to be quite undeveloped, but because of their sheer dint of labor that they have brought this state so forward. And it is full of greenery, full of forest, full of agriculture. Great sports men and women have come from this place, and people are very progressive and they look towards, they are amenable to new ideas, they adopt new things. So as far as infrastructure is concerned, Haryana, because of the proximity to the national capital, it has got many advantages, locational advantage also. It has got a very good infrastructure, very good power, very good roads, very good canal network, very good irrigation. And some of the chief ministers of Haryana have really taken great care in building up infrastructure for this. In southern part of Haryana, for example, the irrigation, because of undulating land, the normal channels, the water could not reach the last level. And then the irrigation, lift irrigation was provided. That was a new thing in those days. And the power was taken to the different, all the villages.
So the labor condition here is very conducive. Industries, they can come and establish their industries here. The marketing network is excellent. The airports are very near. So all these positives are very much present in Haryana. And that is why in terms of investment, Haryana has been attracting investment from all over the country and from foreigners as well. So even sports, like you mentioned, like a lot of medals come from the state of Haryana when we talk about Olympics. But when we talk about the budget allocation in terms of sports, that has been very less year by year. So what is your take on that? Should the budget allocation be more as compared to the other states? हरियाणा को ज़्यादा बजट मिलना चाहिए स्पोर्ट्स में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स क्योंकि मेडल्स आ रहे हैं वहाँ से. वी हैव सो मेनी ओलंपियंस आउट देयर हु कम फ्रॉम आवर स्टेट. पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि स्पोर्ट्स मेन एंड विमेन उन एरिया से आ रहे हैं जो स्मॉल स्टेट्स हैं या क्लास बी एंड क्लास सी सिटीज़ हैं, निकल के आ रहे हैं. तो यद्यपि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका अपना मेहनत और उनको जो एनकरेजमेंट, मोटिवेशन जो मिल रहा है लोकल क्लाइंटेल से, लोकल पॉपुलेशन से, वो इस बात को प्रेरित कर रहा है कि वो रेसलिंग में और बॉक्सिंग में और दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स में निकल कर आ रहे हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाना ये आवश्यक है उन एरियाज़ में, और साथ में आउटले और गवर्नमेंट मनी मस्ट बी प्रोवाइडेड to encourage these people, because the last few years Haryana has done exceedingly well in terms of boxing, in terms of wrestling. I think that we need to encourage such states. I'm not saying that you take away the grants from other states, because ultimately the aim is that the entire country should develop in terms of sports. But those states who are doing very well, their grants definitely should be commensurate with the number of people. In Olympics, Haryana has again done very well in many other international events. So I think sports is one area. Agriculture was one in which Haryana has done so well. Yes. And industry also, Gurgaon and Faridabad, they have become the hub of industries. And now in terms of sports also, we must try to encourage Haryana. And similarly, many states in the northeast, they are doing exceedingly well in terms of sports, and they need to be encouraged. So I think the government is paying a lot of attention to this. And you remember this present government, in many parts of the country where the development was skewed, it was not in commensurate with the place. So the present government brought about a scheme of aspirational district program, so that more money could be pumped into those areas, right, where so far the development has not touched the border districts. Yes, the border districts. So the same way, those states who are doing very well in sports, they need to be encouraged. So there's another question, that what has been the reason for cultivation of this sports culture in Haryana? So Haryana is known for hard work, labor. And since the proximity of Delhi is there, so people are aware of what is happening everywhere. And they are becoming more and more motivated and encouraged. They want to bring their children to the same standards as any international person would be. And that is why in Haryana, the grassroots level, the family support which is being given to these youngsters in coming up well in sports is something which definitely needs to be appreciated. और ये हरियाणा के लिए टिपिकल हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में एग्रीकल्चर में उन्होंने एक महारत हासिल कर ली, उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में जैसे उद्योगों में भी हासिल कर ली. तो अब उनको ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करके दिखाएं. और चूंकि वेल बिल्ट हैं, खाने पीने की कोई कमी एज सच हरियाणा में नहीं है, दूध दही का प्रदेश माना जाता है, तो इसलिए लोग वेल बिल्ट हैं. और पिता जो हैं, माता जो है, दोनों मेहनत करते हैं खेतों में. इनफैक्ट महिलाएं जो हैं हरियाणा की बहुत मेहनती होती हैं. एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, घर के भी कार्य में भी योगदान है. तो वो शुरू से ही बच्चों को स्टडी बना रहे हैं, मेहनती बना रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि गेम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दो. और इसी कारण से विलेज गेम्स को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है. गांव के स्तर पर जो गेम्स हैं, और उसके बाद फिर ब्लॉक के स्तर पर, फिर सब डिवीज़न के, फिर ज़िले के स्तर पर.
तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली गई है और ये प्रोसेस है जिसमें हरियाणा के हर निवासी ने इसमें हिस्सा लिया है और वो चाहते हैं कि हरियाणा का प्रदर्शन न सिर्फ एग्रीकल्चर में सीमित हो बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी जो है ये बढ़कर हिस्सा ले और ये करके दिखाया उन्होंने। So there is a paradox that exists in the state of Haryana. If we talk about the female athletes like Sakshi Malik, like the Foghat sisters, they've been doing a great job. But at the same time, Haryana has faced this problem of skewed sex ratio since a long time. So what is your viewpoint on that? सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम हरियाणा में रही है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 10 से 15 वर्षों के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि सेक्स रेशियो के बारे में जो लोगों का विचार है, उनकी जो धारणा है उसमें परिवर्तन हुआ है। हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर कि बच्चा जो है वो मेल बच्चे को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है बजाय इसके कि फीमेल की, और इसी कारण से ऐसा होता था कि टेक्नोलॉजी आने के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन्स आ गई और भ्रूण हत्या होने लगी और हरियाणा के अंदर सेक्स रेशियो काफ़ी ख़राब होने लगा था। लेकिन उसके बाद सरकार जागरूक हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रांड एम्बेसडर लाए गए जिन्होंने ये कहा कि बच्ची जो है उसका उतना ही महत्व है जितना बच्चे का महत्व है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, कि महिलाओं को जो है प्रोत्साहन दिया जा सके। न सिर्फ हरियाणा में, मैं तो कहूँगा इवन बिहार में आप देखिए बच्चियों को साइकिल प्रदान करने का की पहल ली थी वहाँ के मुख्यमंत्री ने, कि बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि बच्ची जब पढ़ती है तो वो एक परिवार को नहीं बल्कि एक से ज़्यादा परिवार को वो शिक्षित करती है। तो ये जो भ्रूण हत्या या एक एडवर्स सेक्स रेशियो का मामला हरियाणा में दिखाई पड़ता था काफ़ी हद तक, यद्यपि हम लोग इतने प्रोग्रेसिव हैं, ये अब धीरे धीरे ये धारणा कम होती जा रही है और लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि बच्चियाँ जो हैं वो शायद बच्चों से भी ज़्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं। और ये जब चीज़ आ रही है तो मुझे लगता है कि बहुत सुखद ये हमारा फैसला है और लोगों के अंदर जो चेंज हो रही है धारणा की, पैट्रियार्कल के बजाय जो है हमें जो है दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, सभी को बराबर की स्थिति में देखना पड़ेगा और इसके लिए लीड जो लेनी पड़ेगी ना, वो घर के मुखिया को लेनी पड़ेगी कि उसको इस बात की बताना पड़ेगा कि भाई चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों का ही उतना महत्व है और दोनों ही उतना ही ज़्यादा माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा योगदान दे सकते हैं देश की इकॉनमी में भी, परिवार की इकॉनमी में भी। तो जब ये धीरे धीरे धारणा आती जाएगी, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने इसके अंदर इंसेंटिव्स बहुत दिए कि अगर बच्ची होगी तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट में इतने पैसे जमा करा दिए जाएंगे ताकि जब वो बड़ी होगी तो उसके पास इतना पैसा हो। तो ये जो अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स की स्कीम, बेसिकली ये भी तो पब्लिक पॉलिसी ही है। पब्लिक पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जा रही है कि महिलाओं को इसके बारे में जो है महिलाओं को हम ऐसा एक नज़रिया से देखें कि भाई वो भी परिवार के उसी तरह के अंग हैं। और आई थिंक ये इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। छोटी सी बात ले लीजिए कि अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि महिलाएं जो है, बच्चियां जो है वो माता पिता के दिवंगत होने के बाद वो जो है उनका आखिरी लास्ट राइट्स नहीं कर सकती हैं और केवल लड़का कर सकता है, और अगर लड़का नहीं है तो भाई का बेटा जो है वो करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आ रहा है और बच्चियाँ जो है वो माता पिता का अंतिम संस्कार कर रही हैं। तो ये इस बात को बता रहा है कि धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं कि महिलाओं का महत्व जो है। सर ये लाइव एग्जांपल शायद मैं रिलेट कर पाया क्योंकि मेरे केस में जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तब मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि आप कीजिए ये। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई डिड माई सेल्फ एंड आई बिलोंग टू हरियाणा। सो या अ चेंज इज़ कमिंग और शायद टाइम लगेगा और मेजर लेवल पे चेंज लाने में, बट यू राइटली पॉइंटेड आउट सर कि चेंज तो आ रहा है और वो पॉलिसी लेवल पे भी आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है बट शायद थोड़े टाइम में और दिखने लगेगा। हाँ, बेटी को हम लोग पराया धन बोलते हैं और कहते हैं बेटा कंधा देने वाला है। तो ये सब धारणाएं धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। और जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण अपने व्यक्तिगत उससे दिया है, तो जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मेरे फादर इन लॉ की एक ही संतान थी, वो मेरी पत्नी जी। तो जब उनकी डेथ हुई तो जब उनका अंतिम समय आया, उनका जो हम लोगों ने
लास्ट राइट्स कंडक्ट करने थे, तो हम बिलोंग करते हैं एक ऐसे प्लेस को जो कि बड़ा रूढ़िवादी माना जाता है, बनारस। तो बनारस में उन्होंने ये कहा कि देखिए इनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कंडक्ट करने के लिए जो दिवंगत हैं उनके भाई का जो बेटा है जी वो करेगा। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मेरी बड़ी बेटी ने तुरंत कहा बड़े पोलाइटली कि अगर आपको कोई इस बारे में ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन विचार में पड़ गए, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसने शी पुट हर फुट डाउन, शी सेड इफ एनीवन इज टू कैरी आउट द लास्ट राइट इट विल बी मी, एंड वी सपोर्टेड हर, यस and she carried out the last rites of her nana. And when my mother died, I'm the son, I could have easily conducted the Yes. last rites, but again my elder daughter came to me and she said, Papa, if you permit, can I carry out the last rites of Dani? So I said, yes, why not? So she carried out the last rites of my mother, that is Dadi. So she carried out. So this is how change is coming. But then we are the change agents. We Right. have to carry out the change. And who can be the best change agent? They are the civil servants. राइट Because civil servant के पास लोग आते हैं 3 कारणों से, भाववश, अभाववश और प्रभाववश। तो जो चेंज एजेंट्स का कार्य करते हैं, लोगों को आज भी श्रद्धा भाव है सिविल सर्वेंट्स के प्रति। जी आज भी अभाव की पूर्ति के लिए वो सिविल सर्वेंट के पास जाते हैं, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को उस अभाव की पूर्ति के लिए आते हैं। और प्रभाव है, सिविल सर्वेंट्स का प्रभाव है। तो ये जब 3 कारण हैं हमारे पास आने के लोगों के, तो सिविल सर्वेंट्स का भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो चेंज एजेंट के रूप में कार्य करें और लोगों की दिक्कतों को, परेशानियों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें। वही सच्ची मायने में सर्विस होगी, और वही मैं कहता हूँ सिविल सर्विस इज़ अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। So as this podcast is going to be a detailed conversation with Krishnan Mohan sir, so let's just end this first part here and you guys should stay tuned for the second part.